Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture of invertebrate zoology, we are going to have a discussion about phylum Porifera. और इसमें phylum Porifera के कुछ हम initial जो characteristics हैं और features हैं वो हम discuss कर रहे होंगे, such as the body wall and their general features. Phylum Porifera, or they are also known as sponges, parazoans, they are primarily marine animals consisting of loosely organized tissues या loosely organized cells. Tissues की form में present नहीं है. There are no tissues and no organs in this group. Phylum Porifera के members, there are approximately 9,000 species in this group, and they vary in size from few millimeter to sometimes 1 meter, such as Scolymistra jubinae, जो larger sponges हैं, and the mass that would fill more than your arms. 1 मीटर से भी ज्यादा इनका साइज हो सकता है समटाइम. जनरल कुछ फीचर्स इनके अगर देखें, they are all asymmetrical or sometime radially symmetrical. There are basic 3 cell types in their body wall: pinacocytes, mesenchyme cells and choanocytes. Pinacocytes outer body wall में जो आपको outer covering नजर आ रही है इनकी, ये pinacocytes हैं. फिर जो mesohyl cavity के अंदर cells नजर आ रहे हैं, amoebocytes, amoeboid cells, silica spicules और flattened मैट्रिक्स के अंदर जो डिफरेंट स्पॉन्जिन फाइबर्स भी मौजूद हो सकते हैं इसके अलावा. सो mesenchyme cells mesohyl में, choanocytes, these are the flagellated cells inside, और ये एक choanocyte को enlarged फॉर्म में भी यहाँ पे शो किया गया है. एंड flattened pinacoderm, उसमें जो सेल्स हैं वो flattened pinacocytes हैं. So there are 3 basic cell types. Central cavity of the sponges is called spongocele, और उसमें ब्रांचिंग चैम्बर्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर वाटर की सर्कुलेशन होगी. फर्दर इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं नेक्स्ट. देयर आर नो टिश्यूज एंड नो ऑर्गन्स, बट देयर ओनली लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स, but due to their embryonic stages and multicellular organization, heterotrophic mode of nutrition, they are classified as animals. Previous lecture में भी हमने देखा there are 3 basic classes in phylum Porifera: class Calcarea, Hexactinellida and Demospongia. There are 3 classes in the phylum Porifera. और फर्स्ट पोर्शन जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकी सेल टाइप्स, बॉडी वॉल एंड देयर स्केलेटन. सेल टाइप्स, बॉडी वॉल एंड देयर स्केलेटन. सो spongy cells, they are specialized, like pinacoderm में specialized cells pinacocytes हैं जिनका आप रोल पढ़ेंगे. वाटर सर्कुलेशन में समटाइम इनका रोल हो सकता है कंट्रैक्शन के थ्रू. इनके सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी नजर आएगी. That division of labor mean कि certain cells they are specialized to perform digestion, others they are specialized to perform circulation of water. जब cells specialized functions perform कर रहे होते हैं किसी जगह पे, तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेल्स. और अगर सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स की बात करें, वहां पे भी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या ह्यूमन या कोई दूसरे एनिमल की बॉडी में जो ऑर्गन लेवल है वहां पे भी डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप लोग. Thin flat cells in their outer layer, they are known as pinacocytes. They line the outer surface of a sponge. किसी भी sponge की जो outer surface है उसमें pinacocytes मौजूद होंगे. And pinacocytes may be mildly contractile, and their contraction may change the shape of some sponges as well. ये जो pinacocytes हैं, outer layer में जो cells मौजूद हैं, इनकी contraction की वजह से वो कह रहे हैं कि shape of sponges उसमें भी थोड़ी बहुत change produce हो सकती है. And in a number of sponges, some pinacocytes they are specialized to perform to regulate water circulation. वो कैसे कि कुछ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल पोरोसाइट्स वो डेवलप होंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर पोरोसाइट स्ट्रक्चर. और इन पोरोसाइट्स के थ्रू वाटर सर्कुलेशन पॉसिबल होगी, वाटर सर्कुलेट करेगा. सो वाटर सर्कुलेशन इसको देखने के लिए आप अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे हम, तो ये देखिएगा, ये तो इनकी बॉडी कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसील, and their pinacocytes sometimes they are modified to form certain cells which are porocytes. इन porocytes के through water enter होता है.
जो इनलेट पोर्स है इनके, दे आर आल्सो टर्म्ड एज ऑस्टिया, उनको ऑस्टिया का नाम दिया जाता है। व्हाइल द आउटलेट पोर्स दे आर टर्म्ड एज ऑस्कुलम, जो इनका आउटलेट पोर होगा उसको नाम दिया जाता है ऑस्कुलम का, और इनलेट पोर इनके कहलाते हैं ऑस्टिया। सो ये पोरोसाइट्स की वजह से जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं इनलेट पोर्स। ये इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसको प्रीवियस डायग्राम में भी आप देख रहे थे कि आउटर लेयर पेनेकोसाइट जिसमें पोरोसाइट्स डेवलप हो सकते हैं। फिर मीजोहाइल में, मीजोहाइल इज अ कैविटी, ये इनकी कैविटी है मीजोहाइल, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद हो सकते हैं मीजोहाइल में। मीजोहाइल में हैव अमीबॉइड सेल्स, पेनेकोसाइट तो हो गए पेनेकोडर्म में, मीजोहाइल के अंदर ये स्पिक्यूल्स, अमीबॉइड सेल्स या कुछ स्पॉन्जिन फाइबर्स भी नजर आ सकते हैं। वो पोर्स या पोरोसाइट्स जिनके थ्रू वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, दे आर टर्म्ड एज ऑस्टिया। ऑस्टिया न्यूमरस पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर जगह पे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, which allow entry of water into their body. And osculum is the outlet opening जिससे water exit कर रहा होगा। Innermost layer is having choanocytes. These are flagellated cells. इनके functions अभी हम next देखते हैं, लेकिन ये एक choanocyte का structure है जिसमें food vacuole, उसका nucleus और moving water नजर आ रहा है, और उसके अंदर embedded structure flagellum ये नजर आ रहा है। इनका रिप्रोडक्शन और डाइजेशन में बड़ा रोल है। मीजोहाइल की बात करें अगर, अमीबॉइड सेल्स कॉल्ड मीसेनकाइम सेल्स मूव अबाउट इन द मीजोहाइल। ये है जी मीजो अमीबोसाइट्स या मीसेनकाइम सेल्स जो इसमें मूव कर रहे होते हैं। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शन एज वेल, सिक्रीटिंग स्केलेटल एलिमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स अराउंड ओपनिंग्स इन द स्पंज वॉल इन द फॉर्मेशन ऑफ पोरोसाइट। ये हमने पढ़ा भी। इसके अलावा थर्ड लेयर या इनर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं क्वानोडर्म, उसमें कुछ सेल्स होंगे, दे आर टर्म्ड एज क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स दे आर रिस्पांसिबल, क्वानोसाइट्स दे आर आल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। क्वानोसाइट्स को दूसरा नाम हम देते हैं कॉलर सेल्स। एंड कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन प्रोसेस मेनली। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है दैट हैव अ कॉलर लाइक रिंग ऑफ माइक्रोविलाई सराउंडिंग देयर फ्लैजिलम, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये माइक्रोविलाई है कॉलर सेल्स के अंदर, और ये फ्लैजिलम को सराउंड कर रहे होते हैं, सेंट्रल फ्लैजिलम जो इसके अंदर मौजूद है। Microfilaments they connect the microvilli forming a net-like mesh within the collar, and the flagellum it creates water currents through the sponge, and the collar filters microscopic food particles from the water. Evolutionary link between the sponges and a group of protists called conoflagellate वो इन्हीं collar cells की वजह से, और इन्हीं collar cells की वजह से ही इन्हें हम sponges को इंसेस्ट्रल या प्रिमिटिव एनिमल कहते हैं, क्योंकि ये आप डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट पे, ये शायद कॉर्नोफ्लैजिलेट से डेवलप हुए थे। फिर है कि इनका स्केलेटन किस तरह का हो सकता है। स्केलेटन मीजोहाइल में जो मौजूद डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, स्पेशली अमीबॉइड सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या स्पिक्यूल्स हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका हो सकता है। ये राइट साइड पे जो पिक्चर है इसमें आपको ये स्पिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। समटाइम इनके अंदर कुछ फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स, और स्पॉन्जिन फाइबर्स के साथ जब इनको ड्राई किया जाता है तो वही कमर्शियल स्पंज के तौर पे भी यूज होती है। The nature of skeleton is that in sponges is important characteristic for their taxonomy. So that was all about their body wall as well as their skeleton. कि sponges में 3 basic जो है वो cells हैं body wall के अंदर, और इनका जो skeleton है उस skeleton में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका हो सकती है। और ये जो नेचर है इसकी स्केलेटन की, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द क्लासिफिकेशन। दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस पोर्शन।